Okay, so now we are starting the new chapter, reaction mechanism. Very, very important chapter क्योंकि without reaction mechanism you can't handle organic chemistry simply. Okay, so if you know reaction mechanism, then only you can handle the questions of कुछ रट्टा रहता है कि रट्टा मार लिया तो हो जाएगा, but in order to handle the good questions, you need to understand the mechanism, and mechanism will make it easier and interesting also. Otherwise, तो information तुम्हारे ऊपर मैं फेंक दूंगा, it will be like कि पूरा का पूरा रट्टा मारना है. But when you understand the mechanism ना, you'll start enjoying it also, and it will become easier to understand the things because so many reactions we have to handle ना. तो सबके सब रट नहीं सकते, एवरीथिंग कैन नॉट बी मेमोराइज, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड इट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी हैंडल्ड इन दिस पार्ट. लाइक आई ऑलवेज से ना, ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि व्हाटएवर यू आर थिंकिंग ना, मैं बार बार बोलूंगा करके देखो. व्हेन यू आर डूइंग इट देन यू विल बी गेटिंग अ लॉजिकल कंक्लूजन कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या. जब रट्टा रहेगा तो सर खुद बता देंगे कि यहाँ पर दिस थिंग यू हैव टू मेमोराइज, उसके बिना काम नहीं चलेगा. अदरवाइज जब तक मैं ना बोल दूं एवरीथिंग इज लॉजिकल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय लॉजिक, यू हैव टू क्वेश्चन इट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, है ना. तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है बेसिकली, बिकॉज वी हैव नॉट डन केमिकल काइनेटिक्स है ना, अभी तक नहीं हुआ है. वहां पे जाएंगे तो वहां पर भी देयर विल बी सेक्शन कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म इन दैट चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, बट इट विल बी मोस्टली डीलिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म. बट जो कंसेप्ट है वो यहाँ भी आएगा, वहां भी आने वाला है. So basically, when we are talking about reaction mechanism, what do you mean by reaction mechanism? So it is a simple thing that we are making a story. I told you we are making a story. That means it is a hypothetical story which you are making, because at the molecular level, which what is happening you don't know. Nobody has seen that, and that's why we are making a story which will make the process logical. That means whatever experimental observations we are making na, we are getting na, उसको जस्टिफाई करने वाला जो स्टोरी है, जो मोस्ट लॉजिकल स्टोरी है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन मैकेनिज्म. ओके, so when we are talking about reaction mechanism, like I told you, we are going to tell a hypothetical story which is actually the description of path of reaction at molecular level. Okay, that means we have got some reactant, we may have some reagent, and that is going to produce the product B. What is happening inside that reactor, that story we are going to tell, and that will be called reaction mechanism. What happens here ना, जो kinetics में मैं बताता हूँ, चलो यहीं पे सुना देता हूँ. So whenever some reaction is happening, उससे related, you'll be getting some order of reaction, you'll be getting some observation related to the reaction. उसको justify करने के लिए scientist will be doing experiments तो करते ही करते हैं. Somehow they'll be doing some calculations, and then ultimately they'll be coming out with some story कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, इसलिए we are getting this type of observations. While telling the story, ऐसा नहीं कि एक साइंटिस्ट ने बोला दूसरे की स्टोरी एग्जैक्ट मैच करेगी. हो सकता है कि different scientists can have different stories, but ultimately the committee will be deciding the most logical story क्या बन रही है, और उसके बाद that will be called the official reaction mechanism of the reaction. And that's why टाइम टू टाइम कभी कभी कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म चेंज भी होता है. सो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए मैकेनिज्म है, इसलिए ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं होता है. तो ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जर्वेशन पहले आता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देन एक्सप्लेनेशन. ओके, केमिस्ट्री में ये चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, बिकॉज वी कांट हैव ऑल द आइडियल पाथ, सब कुछ आइडियल आ रहा है, मैं मैथ से कैलकुलेट करके आई कैन टेल यू द कि फाइनली क्या होने वाला है ना. तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स आर वर्किंग टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी गो बाय द ऑब्जर्वेशन कि ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है, नाउ हाउ टू जस्टिफाई इट. Now, once we get that justification, and once we get the logical conclusion, then we can apply it for many reaction, and we find it to be right, है ना, कि मिल गया कि हाँ ठीक है, ये चीज इतने सारे रिएक्शंस में भी हम लोग करेंगे ना, we'll be finding it कि हाँ ठीक है, ये right products दे रहा है. Sometimes you'll be getting wrong products also. Then I'll tell you कि यहाँ पर देखो ये सब नहीं लगाना, because these were the reasons, and then that will be the point जहां पे तुमको लगेगा कि नहीं ये वाला रट्टा पॉइंट. ठीक है, तो विल कीप आइडेंटिफाइंग दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस की नहीं ठीक है, सर ने जो नॉर्मली बताया उससे ये सारे हैंडल हो जा रहे हैं, एक आध ऐसा है जो हैंडल नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग अलग से एक बॉक्स करके रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसको अलग से सीखना पड़ेगा. तो बेसिकली एक रिएक्शन का बेसिक फॉर्मेट क्या होने वाला है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स. Sometimes a reaction can be explained in just one elementary step, then that reaction itself is called elementary reaction. एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया, ठीक है. But sometimes you can have multiple steps involved in the reaction mechanism of the given reaction, then we call it complex reaction. So complex reaction will have more than one elementary steps involved in its reaction mechanism.
and elementary reactions में it will have just one step. So we can have two types of reaction. One will be elementary reaction, which will have only single elementary step, but we can have complex reactions which can have multiple elementary step. जैसे एक ग्राफ से दिखाता हूं मैं elementary reaction के लिए reaction कैसा दिखेगा and जब complex होगा तो कैसा दिखेगा. Just see this one. देखो elementary step में क्या मैंने बोला, there was a reactant and then there we have got a product. इस पूरी कहानी में ये जो बीच की कहानी आ रही है ना, this is called transition state. This is called transition state, which is a hypothetical state again. Transition states are hypothetical. इसको भी यहां पर this is called transition state. This is hypothetical. Again, this is not real. So in elementary reaction, we have reactant or reactants and we have got products directly. बीच में कोई भी intermediate नहीं मिल रहा है. There is no real substance which is being formed in between, and that's why we are calling it elementary reaction. But if you see complex reaction, it can have multiple steps. जैसे अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, that will be having, see the number of steps involved in this. पहले reactant से we have got I1, then we have got I2, then we have got product. So we are actually having three steps. In these three steps, if you see, if I say X1, X2, and X3, these are transition states, which are hypothetical again. These are transition states. But if you see I1 and I2, these are intermediates. So you'll always find that number of transition states will be equal to number of intermediates plus one. एक ज़्यादा होगा हमेशा. So if you have got elementary step, there is no intermediate, so you have got just one transition state. But if you are having a complex reaction, it can have two step, it can have three step. Then always you will be finding that number of transition state will be one more than the number of intermediates. So these are intermediates. So we say that number of transition states is equal to number of intermediates plus one. Any doubt up to this point? Any doubt? Okay, clear नहीं यहाँ तक? अभी देखो, if it is a complex reaction, तो उसका एक typical कैसा representation दिखाते हैं हम लोग. So you will be having a reactant which is also called substrate. एक reactant होगा, जैसे organic में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो you will be having an organic molecule which will be called substrate. उसके ऊपर एक attacking reagent होगा. And then you can have two steps. हो सकता है कि वो डायरेक्ट बन जाए तो it will be an elementary reaction, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया. या फिर हो सकता है in presence of attacking reagent it will first be forming intermediate, and then intermediate के बाद you can have product or products, and you can have also byproducts, है ना. This is a typical representation of a complex reaction. Is it okay? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको. मान लो अपने पास एक ये रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं. आई एम जस्ट शोइंग यू, बाद में इसको हम लोग अच्छे से और सीखेंगे. जैसे ये रिएक्शन दिखाया तो पता चला कि यहाँ पर वी हैव गॉट अल्कोहल. देखो ये अल्कोहल है और यहाँ से ये बन गया अल्कीन, है ना, डबल बॉन्ड बन गया. तो ये जो कहानी पूरी चल रही है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली, बाद में हम लोग सीखेंगे हाउ इट इज हैपनिंग. बट अभी के लिए इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस व्हाट विल हैपन है ना, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे OH2 प्लस बन जाएगा. तो दिस इज वन इंटरमीडिएट, एंड देन विल बी गेटिंग H2O निकल आएगा, so we'll be getting another intermediate like this. This will be another intermediate, यहाँ से H2O निकल के, and then उसके बाद फिर we are saying that there is some shifting occurring here, so we'll be having this one and plus will be going here, and then H plus निकल जाएगा तो we'll be forming this one. ये just I'm telling you कि ये स्टोरी कैसी जा रही है, बाद में सीखेंगे इसको कि ये कैसे हो रहा है. So we are getting these many intermediates, ये सारे के सारे intermediates है ना. And then finally we are getting this product. If you see this reaction, we are saying this is substrate. तो ये सब टर्म्स है जो हम लोग लगातार फ्रीक्वेंटली वी आर गोइंग टू यूज. दिस इज रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट और रिएजेंट.
and this is product, है ना. But बीच में we have got so many intermediate, three intermediates we are getting here, है ना. Is it okay? Now इसका again I am covering basically जो हम लोग kinetics में करते हैं ना, बहुत बार होता है कि काइनेटिक्स पहले हो चुका होता है तो वहां से आसान हो जाती है कहानी, लेकिन उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वी आर गोइंग टू रिपीट हियर आल्सो. तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसकी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि व्हेनेवर वी आर सेइंग देयर इज सम रिएक्शन मैकेनिज्म व्हिच इज अ वैलिड रिएक्शन मैकेनिज्म, तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों ने क्या किया है कि वी आर एक्सप्लेनिंग द होल रिएक्शन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स, है ना. तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री स्टेप मस्ट बी गिविंग यू द ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन, है ना. इट्स लाइक कि आई एम टेलिंग यू कि एक स्टोरी बनाओ जिसमें हीरो जो है ना वो विलेन से मिलता है और बाद में उसको गोली मार के खत्म कर देता है, ठीक है. आई एम टेलिंग यू कि इसके लिए स्टोरी बनाओ. अब तुम मल्टीपल स्टोरीज, अलग अलग बच्चे अलग अलग स्टोरीज बना सकते हैं ना, लेकिन उस हर स्टोरी का ये तो हमेशा एक कंस्ट्रेंट हो गया ना कि एंड में गोली लगवानी है विलेन को, है ना. अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुमने एक स्टोरी बनाई जिसमें बोला कि नहीं इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, वायलेंस अलाउड नहीं है, तो लास्ट में गोली लगनी ही नहीं है. So that cannot happen. So whenever you are explaining the reaction as a combination of elementary step, ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन तो मिलना चाहिए जिससे कहानी स्टार्ट हुई थी. इसलिए मैंने पहले तुमको स्टोरी बताया कि पहले रिएक्शन है, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए वट एवर स्टोरी वी आर मेकिंग दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. तो पहला कंडीशन तो ये है कि वट एवर स्टोरी वी आर सेइंग उसका सम अप करने पर फाइनली जो कंक्लूजन हमारा ओवरऑल स्टोरी में आ रहा है तो वो तो आना चाहिए. तो दैट्स वन पार्ट. सेकंड थिंग, लाइक आई टोल्ड यू, whatever experimental observations we have got including the expression of for the experimental rate law or the order of reaction, ये हम लोग सीखेंगे आगे. इसको मैच करना चाहिए विद द प्रोपोज्ड मैकेनिज्म, दैट इज सेकंड पार्ट. जब हम लोग मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसमें से हो सकता है एक स्टेप स्लो हो, एक स्टेप फास्ट. The slowest step out of all those multiple elementary steps is called the rate determining step. ये क्या होता है ना, बेसिकली इसको ऐसा समझो कि वी आर हैविंग रिले रेस, जानते होगे ना. रिले रेस में जब चार लोग दौड़ते हैं ना, मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे रिले वाला जो डंडा होता है बहुत सारे हैं, और उसमें से जो चार पार्टनर है उसमें से वन इज वेरी स्लो एंड पूरा रेस हो रहा है. तो इट इज लाइक बॉटल नेक जैसा बिहेव करेगा वो, कि सारा एक टाइम आएगा जब सारे के सारे वो रिले वाले जो स्टिक्स है ना वो उसके पास जमा हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्लो जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बहुत स्लो जा रहा है. तो इट इज लाइक अ बॉटल नेक कि जो स्टेप स्लो होगा ना, that is going to decide the overall rate of reaction because that is the slowest step. So ultimately all the molecules will be at the door of that step, है ना. मान लो चार पांच डोर है एक जगह, जैसे यहाँ पर अपना जो टोल वगैरह पे जो लाइन लगती है, मान लो बहुत सारे टोल्स हैं, उसमें से एक टोल पे बहुत आसानी से एग्जिट मिल जा रहा है, दूसरे पे बहुत ही आसानी से एग्जिट मिल रहा है सारी कार्स को. एक टोल अगर बहुत स्लो चल रहा है तो अल्टीमेटली यू विल बी सीइंग मोस्ट ऑफ द टाइम सारी कार्स उस टोल के पहले खड़ी है, और अल्टीमेटली वही प्रोसेस जो हो रहा है ना उसके बाद फिर से निकल के आगे बहुत तेजी से भाग जा रही है सारी गाड़ी. तो जो स्टेप स्लोएस्ट है दैट इज गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई उस स्टेप को वी आर कॉलिंग इट रेट डिटरमिनिंग स्टेप. एंड दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज that whatever is the slowest elementary step that is going to be the rate determining step. तो वहीं से हम लोग rate of reaction लिखते हैं. तो rate of reaction is actually considered to be rate of RDS, एंड वहीं से ऑर्डर लेते हैं. ये ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, अगर काइनेटिक्स सीखा होगा, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह में हुआ होगा, तो मान लो कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है ना, A+2B गिविंग C, और मैंने बोला कि रेट जो है ना वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर एंड रेट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू 1, ऐसा कुछ अगर मान लो हो गया, तो यहां से हम लोग रेट का पूरा एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं दैट रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, इनटू ए स्क्वायर इनटू बी. ठीक है. नो आर एंड इट इज नॉट नेसेसरी, दैट्स व्हाई जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा, rate is not necessarily equal to the coefficient in the given reaction. Okay, but if it is an elementary reaction then coefficient is necessarily equal to the order of reaction. ठीक है, यहाँ मैंने जानबूझ के ऐसा उल्टा लिखा था. तो in general it is not necessary that coefficients are definitely going to be equal to the order. ठीक है, तो यहाँ पे we are saying कि this is rate constant, एंड देन ये जो 2 and 1 आया है ना, इसको मैं बोलूंगा दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
B, this is order with respect to A, and that's why it is always experimentally determined कि order कितना आ रहा है, क्योंकि ये कोई necessity है ही नहीं कि वो coefficient के बराबर होगा. If it is an elementary reaction, then order is same as the coefficient. So I'll write that point also. For elementary reaction, order with respect to a reactant is equal to coefficient of the reactant. But for complex reaction, order with respect to a reactant हो भी सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेफिनेटली इक्वल नहीं ही होगा. आई एम सेइंग कि इट इज नॉट नेसेसरली इक्वल. इट मे बी इक्वल, इट मे बी डिफरेंट. Is not necessarily same as its coefficient. Any doubt up to this point? देखो, दिस इज वन चैप्टर जहां जितने डाउट्स पूछने हैं पूछ लो, क्योंकि यहीं से क्लियरिटी आएगी एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि कहीं डाउट रहेगा तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू हैव टू आस्क. ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो, एक और पॉइंट जो मैंने बोला है कि जरूरी नहीं कि हर बार हर रिएक्शन का नोन एक आरडीएस हो, ये जरूरी नहीं है. केमिकल काइनेटिक्स में विल बी टॉकिंग अबाउट सच वन टू रिएक्शन जिसमें कोई पता ही नहीं कि कौन सा आरडीएस है. फिर उस केस में क्या करते हैं, वो एक मैथमेटिकल पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में करेंगे. यहाँ पर उसका कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है. अब बिकॉज आई टोल्ड यू कि अच्छा, एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन और an elementary step also, we can directly write it कि ऑर्डर जो है ना वो कोफिशिएंट के बराबर है. तो अब सबसे पहला काम आ गया कि अगर हम लोगों को रेट आइडेंटिफाई करना है कि रेट का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, वी नीड टू फाइंड आउट कि एलिमेंट्री स्टेप कौन सा है. एलिमेंट्री स्टेप में जो रिएक्टेंट्स या फिर जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके कोफिशिएंट कितने, और उसके हिसाब से वी कैन राइट द रेट, है ना. तो आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मान लो मैंने बोला आई एम हैविंग अ रिएक्शन. रिएक्शन इज, अभी जो लिखा वही लिखते हैं, a प्लस टू बी गिविंग c. ठीक है. एंड देन मान लो यहां पर मैंने बोला प्रोपोज्ड मैकेनिज्म जो है ना उसमें दो स्टेप्स हैं. इफ आई से स्टेप वन इज a प्लस बी गिविंग d, एंड देन स्टेप टू इज b प्लस d इज गिविंग यू c. तो सबसे पहली बात जो मैंने कंडीशन बताया था कि ये दोनों को ऐड करके वी मस्ट बी गेटिंग, देखो a प्लस टू बी गिविंग c आ जा रहा है ना. इफ आई एम एडिंग दैट, इसका मतलब ये जो था दैट वाज इंटरमीडिएट. पहली बात तो ये आ गई. दूसरी बात, इफ आई से मान लो लेट की स्टेप वन को मैंने बोला दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट. नाउ व्हाट विल हैपन, अभी अगर मुझे चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रेट ऑफ आरडीएस. आरडीएस का मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप. रेट ऑफ आरडीएस, एंड आरडीएस इज द स्लोएस्ट स्टेप. स्लो में अब देखो, एक के सामने स्लो लिखा है, एक के सामने फास्ट लिखा है. ऑब्वियसली जिसके सामने स्लो लिखा है दैट इज द स्लोएस्ट वन, है ना. तो दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ स्टेप वन. स्टेप वन में जाके हम लोग क्या करेंगे, विल बी राइटिंग रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप. मान लो यहाँ का रेट कांस्टेंट वाज k1, यहाँ का k2 था. विल बी राइटिंग k1 इनटू, अभी देखो यहाँ जो दिख रहा है वो a और b दिख रहा है,
विल बी राइटिंग ए रेज टू, उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और बी का कोफिशिएंट भी इस स्टेप में 1 ही है, तो विल बी राइटिंग 1 ओनली, एंड दिस विल बी कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन. इज इट ओके? एनी डाउट? So this is an elementary reaction that we've considered. If it was a one second. If it was an elementary reaction ना, मान लो यही रिएक्शन बोलता है a plus 2b giving c is an elementary reaction, then I'll be writing rate will be some rate constant into a raised to 1 b raised to 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है. But if it is a complex reaction, then we have to see the mechanism, और उसके बाद फिर उसमें से slowest step is going to guide you कि what will be the rate or what will be the order of reaction with respect to a particular substance. Is it okay? अब चलो ये तो कहानी हो गई. अब इसमें से ऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली व्हेन वी हैव टू आइडेंटिफाई, जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, एवरी टाइम इट विल नॉट बी वैलिड बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी वैलिड. इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई ना, कि जब काइनेटिक्स का क्वेश्चन होता है ना, तो यू विल बी गिवन सच टाइप ऑफ वर्ड्स, एक के सामने स्लो, दूसरे के सामने फास्ट, या फिर दे विल बी राइटिंग द रेट कांस्टेंट का वैल्यू, जिसका सबसे छोटा आ रहा है दैट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप. लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिक में जाते हैं ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर्स नहीं देगा, क्योंकि काइनेटिक्स में वो ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं. ऑर्गेनिक में वी नीड टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. तो रेट आरडीएस पहचानने का तरीका क्या है? मान लो एक रिएक्शन के 2 स्टेप्स दिख रहे हैं, एक में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दूसरे में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो हम लोग उसमें से बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप को नॉर्मली वी आर गोइंग टू कॉल इट स्लोअर स्टेप, ठीक है. तो वी आर सेइंग दैट कि मान लो 2 स्टेप हो रहे हैं, एक में बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, एक में बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग को स्लोअर बोलेंगे एंड दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी द आरडीएस. इज इट ओके? दूसरा, मान लो एक में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, दूसरे में इंटरमीडिएट से कुछ और बन रहा है. तो इंटरमीडिएट बनने का मतलब, इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन कार्बन है, दे आर हैविंग अनयूजुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद कार्बन, है ना. इसका मतलब तूने बॉन्ड ब्रेक करके वो बनाया है. नॉर्मली, जनरली, अगेन एंड देखो, मैंने हर बार जनरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है. तो विल बी मोर स्पेसिफिक विद द रिएक्शंस, बट जनरली यू विल फाइंड दैट कि इंटरमीडिएट बनने में यू आर गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टू बी द स्लोअर स्टेप. इज इट ओके? यस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. क्या मैंने बोला? whenever we'll be seeing the mechanism ना, मान लो एक स्टेप में हो गया था तो कहानी खत्म. लेकिन अगर मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हैं जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, देन विल बी सीइंग दैट कि और इंटरमीडिएट बनना नॉर्मली इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, एंड इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट बनना इज बॉन्ड फॉर्मेशन वाला प्रोसेस होगा. एंड दैट्स व्हाई विल बी सेइंग कि इंटरमीडिएट का बनना जनरली इज गोइंग टू बी द स्लोअर स्टेप, एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी द आरडीएस. इज इट ओके? तीसरा है, व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट, जैसे मेरे पास OH माइनस है, तो OH माइनस का मल्टीपल बिहेवियर हो सकता है. इट कैन एक्ट एज बेस, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, है ना. तो वहां पे अगेन वी हैव टू सी दैट कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन वेयर reagent can capture H plus, मान लो OH minus है तो it can capture H plus, that is one possibility. और OH minus can attack over the carbon which is having a vacant orbital of thing. So वहां पर अगर ऐसी चीज आ जाए ना, we will always say that कि acid base reaction is going to be faster than the nucleophilic or electrophilic attack. Okay, so these are 3 general guidance जिसके through we can identify that what is RDS. Rishit, intermediate is not more stable than reactant. Who told you intermediate is more stable? If you see ना, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, I have got this one. This is my reactant, and मान लो यहाँ H plus add करके and then minus water निकाल के I have got C पे plus and then we have got CH3, CH3, CH3. Now if you say, if you compare this one and this one, definitely intermediate is less stable than the reactant because we have got only 3 bonds. इसकी valency satisfied नहीं है ना, only 3 bonds present are present at carbon. So when we say organic में intermediate, it will be normally जो हम लोगों ने पढ़ा था जीओसी में, इसलिए मैंने बोला था कि जीओसी को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहोगे. जो हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात की थी, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नॉर्मली तुमको यही मिलेगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इंटरमीडिएट के बनने में वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, है ना. ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्लोअर. मान लो इसी में फिर किसी ने बोला कि यहाँ पे मेरे को एक बॉन्ड बना देना है, जैसे ये मान लो अगर मैंने बोला कि दिस इज फॉर्मिंग CH3 एंड देन C,
डबल बॉन्ड CH2, इसने एक पाई अल्टीमेटली बना लिया है ना। तो यहाँ पर पहले में सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दूसरे में भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है बट फॉर्म भी हुआ है। तो यहाँ पर इफ यू से, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस विल बी द स्लोअर स्टेप, दिस इज गोइंग टू बी द स्लोअर स्टेप, दिस इज गोइंग टू बी फास्टर स्टेप। इज इट ओके? एनी डाउट? दिस इज क्लियर ना? Am I clear? Any doubt up to this point? ओके, तो ये एक जनरल गाइडेंस है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया। कभी कभी तुमको दिखेगा कि वी कैन हैव टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। एक को बोलते हैं काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट, अनदर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। sometimes you can have that product same for kinetically and thermodynamically also, matlab one product may be kinetically as well as thermodynamically favored also, but many times you'll find that there can be two products की possibility, one is kinetically favored, another is thermodynamically favored। इसमें क्या देखना है हमेशा, थर्मोडायनेमिकली मोर फेवर्ड प्रोडक्ट का मतलब है यू आर गोइंग फॉर मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ओके, एंड काइनेटिकली मोर फेवर्ड प्रोडक्ट का मतलब है यू आर गोइंग फॉर द फास्टर रिएक्शन, ओके। जैसे आई टेल यू वन एग्जांपल, मान लो अपने पास वी हैव गॉट, यहाँ पे भी OH है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सैंपल एग्जांपल, एंड OH। अभी देखो यहाँ से अल्कीन अगर बनाना है डिहाइड्रेशन के थ्रू, यहाँ का H और यहाँ का OH निकालना है, और एक है यहाँ से अल्कीन बनाना है, तो फिर यहाँ पे अगर मैंने अल्कीन यहाँ पे बनाया ना, विल बी गेटिंग मोर स्टेबल अल्कीन बिकॉज ऑफ ग्रेटर हाइपर कंजुगेशन, है ना। इधर का अल्कीन विल बी लेस स्टेबल। तो बट यहाँ पे अप्रोच करना, अप्रोचिंग दिस OH विल बी इजियर बिकॉज वो साइड में प्राइमरी अल्कोहल वाला पार्ट है ना। बट अप्रोचिंग दिस, इनफैक्ट यहाँ पर मैं अगर और इसको कॉम्प्लिकेट कर दूं ना, तो यहाँ पर मान लो यहाँ CH3 और डाल। Now approaching this OH will be more difficult because it is tertiary alcohol, and that's why अगर मैंने पहली बार ये अप्रोच किया है तो दिस इज काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट यहाँ से जो बना, और मैंने अगर यहाँ पे अप्रोच किया तो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू गिव यू thermodynamically more favored product। We'll be finding in some reaction we'll be getting such type of situation where we can have multiple products form, one can be kinetically favored, another can be thermodynamically favored। Thermodynamically favored का मतलब simply we are talking about that product which is more stable, और kinetically favored का मतलब which is more easier or which is faster to produce or faster to form। Is it okay? तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ कंपैरिजन किया है प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी देखो नीचे है एनर्जी में, दिस इज मोर स्टेबल, है ना, and that's why we are saying कि product B is thermodynamic product or thermodynamically favored product। Is it okay? But if you see the reaction, इसमें से ये जो गैप होता है ना रिएक्टेंट टू ये ट्रांजिशन स्टेट, इस गैप को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ऑब्वियसली काइनेटिक्स करेंगे तो हम लोग सीखेंगे उसको। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ना वो स्लोअर रिएक्शन, तो ज्यादा रेड वाला दिख रहा है ना वो स्लोअर है, ब्लू वाला इज फास्टर, है ना, ये जो ब्लू वाला है दैट इज फास्टर क्योंकि कम है वो ये, है ना। तो ब्लू वाला रिएक्शन इज फास्टर एंड ब्लू वाला इज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट ए, and that's why we are saying कि product A is the kinetic product। Is it okay? Any doubt? So in many reactions we'll be talking about kinetics as well as thermodynamics, and sometimes they'll be asking you major product क्या होगा, तो कभी कभी कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि स्टेबिलिटी भी देखना और रेट ऑफ रिएक्शन भी देखना है, तो दोनों को मिला के हम लोगों को कई बार काम करना पड़ेगा। बट आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट दैट सेंस की whenever we will be trying to form the product ना, we need to see it in two ways। one is faster reaction कौन सा होगा, second is more stable product कौन सा बनेगा। फास्टर रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको काइनेटिकली फेवर्ड बोलते हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। समटाइम्स अ प्रोडक्ट कैन बी काइनेटिकली एज वेल एज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड, है ना। कभी कभी हो सकता है कंट्राडिक्शन आई ना, तो वो भी हो सकता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। इज इट ओके? अब इस पूरी कहानी में एक पार्ट जो बार बार काम आने वाला है, बिकॉज आई टोल्ड यू इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन यू विल फाइंड दैट
कि इंटरमीडिएट का बनना इज RDS, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा रही तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज दैट स्टेप इज गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर वी हैव लर्नड ड्यूरिंग जीओसी ना, वो यहाँ काम आने वाला है. विल बी टॉकिंग अबाउट मेनी टाइम्स, विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट्स. जैसे कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने बताया था, दिस वाज अ टिपिकल ऑर्डर. तो दैट्स व्हाई मान लो एक में टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और एक में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है. तो इफ दे आर आस्किंग यू कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, कौन से सबस्ट्रेट का, तो जो टर्शरी बना रहा है उसका रेट ज्यादा होगा, बिकॉज दैट इज फॉर्मिंग मोर स्टेबल इंटरमीडिएट. इज इट ओके? Sometimes you can have a reaction going through formation of free radical also. तो फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात होगी, तो वहां पर फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम लोगों को देखना पड़ेगा. तो अगेन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, एक जगह फर्क जो मैंने बताया था. यहाँ देखो टर्शरी जो है ना, वो बेंजाइल और अलाइल से ज्यादा स्टेबल आ रहा है ना. बट यहाँ अगर हम लोग फ्री रेडिकल में जाते हैं तो नाउ वी से टर्शरी इज लेस स्टेबल देन बेंजाइल एंड अलाइल, है ना. दैट इज द मेन डिफरेंस, और कुछ नहीं है. जैसा कार्बोकेटाइन में ऑर्डर दिखता है वैसा ही तुमको फ्री रेडिकल में. Very rarely you can have also a reaction which is undergoing through the formation of carbocation. बहुत कम मिलेंगे बट मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे. Then we are going to talk about the stability comparison of the carbon ion. उसमें बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग देखते हैं पहले अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है तो दैट इज ओके, विच इज हैपनिंग इन बेंजाइल और अलाइल वाले में. बट उसके बाद जैसे अगर हम लोगों को नॉर्मल अल्काइल वाला आ जाता है तो वी सी दैट की अल्काइल ग्रुप कम रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज गोइंग टू ब्रिंग प्लस आई इफेक्ट, है ना. प्लस आई इज गोइंग टू डीस्टेबलाइज इट. दिस इज डीस्टेबलाइजेस कार्बन आयन. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट है तो पूछ लो. नाउ इसके आगे व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डील विद. एक बेसिक मैं फ्रेमिंग दे देता हूँ पहले स्टार्ट में, देन विल गो इन डिटेल. अभी देखो जैसे मैं तीन टाइप के रिएक्शंस की बात करूंगा. उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन आएगा, फिर एक एलिमिनेशन आएगा, फिर एक एडिशन आएगा. सब्स्टिट्यूशन में मैं बताऊंगा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी दो टाइप होंगे, SN1 SN2 ऐसा. तो आप धीरे धीरे उसको हम लोग डिटेल में जाएंगे. एक एक करके देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डील विद. तो पहला जो टाइप है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वन सिग्मा विल बी ब्रोकन, अनदर सिग्मा विल बी फॉर्म. तो इसमें क्या हो रहा है ना, देखो जरा. ए और बी का बॉन्ड था, अभी ए और बी का बॉन्ड ब्रेक होके ए और सी का बन गया. इसका मतलब वन सिग्मा फॉर्म, वन सिग्मा ब्रोकन. इज इट ओके? दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. एनी डाउट इन दैट? तो जैसे देखो यहाँ पे we had got CH4 Cl2. ये देखो ये CH बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक करके उसकी जगह CCl बॉन्ड बना दिया है. तो वी आर सेइंग कि दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. H is being substituted by Cl. इज इट ओके? या फिर RX प्लस OH था, RX बॉन्ड ब्रेक किया, ROH बॉन्ड बना दिया, RO बॉन्ड बना दिया, तो दैट इज अगेन सब्स्टिट्यूशन. नाउ इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को एज अ फैक्टर लेंगे, देखो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे कैसे एंटर करेगा. अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को एज अ फैक्टर लिया, पहली बात देखो ना, यहाँ पर जैसे यही रिएक्शन देखो, यहाँ दो मॉलिक्यूल्स थे, प्रोडक्ट में भी दो मॉलिक्यूल्स मिल गए. इफ आई आस्क यू डेल्टा एस कितना होगा ना, तो यू विल से एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे, यू विल से वेरी क्लोज टू जीरो होगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से दो ही मॉलिक्यूल मिल रहा है ना. वी आर नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, सो वी आर सेइंग कि डेल्टा एस का चेंज बहुत ही छोटा होगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे डेल्टा एस अगर ऑलमोस्ट जीरो है, नाउ इफ वी सी द टर्म ऑफ डेल्टा जी विथ डेल्टा एच नॉट डेल्टा जी नॉट अगर मैं माइनस टी डेल्टा एस नॉट. अब ये ऑलमोस्ट जीरो जैसा है ना, अगर ये ऑलमोस्ट जीरो जैसा है तो फिर डेल्टा एच नॉट इज गोइंग टू डिसाइड द साइन ऑफ डेल्टा जी नॉट, है ना. तो यहाँ पर बोलेंगे अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा जी नॉट को निगेटिव कर देगा, दैट इज गोइंग टू फेवर द रिएक्शन, है ना, स्पॉन्टेनिटी के लिए अच्छा है वो. डेल्टा एच नॉट अगर पॉजिटिव हो गया रिएक्शन का तो फिर दैट इज नॉट गुड फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. So that's why in such type of reactions we say that exothermicity is necessary for spontaneity. Is it okay? ऐसे जितने रिएक्शंस है उसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर एक्सोथर्मिक है तो काफी अच्छा है. एक्सोथर्मिसिटी इज गोइंग टू
support, or this is going to be necessary for spontaneity of the reaction. Is it okay? अभी आते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में, विच इज बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं. देखो एलिमिनेशन भी अब तीन तरह के होंगे, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है पहले वो सीख लेते हैं. मोस्टली हम लोग इसी के साथ डील करेंगे. यहाँ पर क्या है ना, जैसे यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इधर है ही नहीं, ब्रेक हुआ है, और एक पाई बन गया है ना. यहाँ देखो ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया ना. वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पर एक पाई बन चुका है, यहाँ पर एक पाई बन गया है. तो वी आर ब्रेकिंग टू सिग्मा बॉन्ड्स एंड वी आर फॉर्मिंग वन पाई बॉन्ड, है ना. इज इट ओके? सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉर्मली स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, एंड दैट्स व्हाई अगर तुमने दो सिग्मा ब्रेक किया है तो यू आर कंज्यूमिंग मोर एनर्जी. और एक ही पाई बना है, एक बना है वो भी पाई बना है, तो यू आर रिलीजिंग लेस एनर्जी, है ना. तो दैट्स व्हाई ओवरऑल रिएक्शन का नेचर अगर देखोगे तो दो कहानियां हैं. एक कहानी ये है कि ये बनेगा, साथ में देखो HX भी तो बनेगा, है ना. तो अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं. पहली बात तो ऐसे रिएक्शंस में बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग वाला प्रोसेस वाज मोर एनर्जी कंज्यूमिंग, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल वी से दैट कि इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर. तो एंडोथर्मिक नेचर का होता है तो टेम्परेचर का बढ़ाना एंडोथर्मिक शिफ्टिंग करवाता है ना. हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाए तो एंडो शिफ्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई these kind of reactions are supported at higher temperature. So that is one explanation. We are saying that कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए ना तो एंडो शिफ्ट होगा, तो अगर ये एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर्ड होगा. दैट्स वन एक्सप्लेनेशन. सेकंड एक्सप्लेनेशन इज ऐसे रिएक्शन में देखो ये एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर देखो इसे दो मॉलिक्यूल बन गया ना. इसका मतलब है एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. when you say entropy is increasing, तो delta G naught को I am writing it as delta H naught plus T into minus delta H. If delta H naught is positive, that means this is negative. Then temperature का बढ़ाना will make it more negative, है ना, will make delta G naught more negative, and that's why it is always favored by higher temperature. So we are saying in this case, such type of reactions are favored at high temperature, and that's why most of the elimination reaction में देखोगे ना, they will always be giving you heat. मतलब रिएक्टेंट देंगे, सबस्ट्रेट देंगे, रिएजेंट देंगे, साथ में हीट दे देते हैं. हीट देने का मतलब दे आर इंश्योरिंग दैट कि तुम्हारा रिएक्शन जो है ना वो एलिमिनेशन की तरफ जा रहा है. एनी डाउट इन दिस पार्ट? सर हाँ जी, फर्स्ट वाला एंडोथर्मिक कैसे वो नहीं. 1 मिनट, तुम्हारी आवाज नहीं आई, फिर से बोलो. सर वो फर्स्ट वाला है वो एंडोथर्मिक कैसे हो वो नहीं समझ. फर्स्ट वाला एंडोथर्मिक, ये वाला रिएक्शन. हाँ हाँ ओके, इसको देखो ना, अब ब्रेक क्या हुआ है, दो सिग्मा है ना, दो सिग्मा ब्रेक हुआ ना. ये देखो CH बॉन्ड था, अब नहीं रहा ना इधर. हाँ. वैसे CX बॉन्ड था जो नहीं रहा इधर. That means we have broken two sigma bonds, and what is being formed, जो C single bond C था उसकी जगह C double bond C आ रहा है. That means we have formed one pi. We are breaking two sigma and we are forming only one pi. तो ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई है, फॉर्म करने में कम एनर्जी रिलीज हुई है ना. And that's why overall net consumption of energy is going to happen. Okay, and that's why we are saying कि overall this reaction is endo. Okay, ईशान, डेल्टा एस क्यों हुआ? क्योंकि वी आर सेइंग कि one molecule is going to produce two molecules, है ना. If the number of molecules are increasing, then we are saying कि entropy of the system is increasing. That means delta S is going to be positive. Is it okay? Clear ना ईशान? थर्मोडायनेमिक्स में मैंने इनको प्रैक्टिस करवाया था. जब हम लोग रिएक्शंस देखते हैं उसका डेल्टा एस नॉट का साइन प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने पूरी एक एक्सरसाइज करवाई थी. इफ इट इज अ गैस फेज रिएक्शन, वी सी दैट कि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं. अगर बढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है. कम हो रहे हैं तो वी आर सेइंग दैट कि डेल्टा एस नॉट नेगेटिव है. अगर बराबर होता है तो देन वी गो फॉर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी. मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्टिकुलरली गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ रहा है तो हम लोग फिर से बोलेंगे डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव. ओके, तो दीज आर द थ्री थिंग्स वी हैव टू कंसीडर व्हाइल चेकिंग द साइन ऑफ डेल्टा एस, है ना. तो दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल रहा है. फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो हायर टेम्परेचर से सपोर्टेड होगा. दूसरा एक्सप्लेनेशन मैंने बोला डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है ना, इसका मतलब माइनस डेल्टा एस नॉट नेगेटिव है. दैट मींस इट विल बी फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर बिकॉज हायर टेम्परेचर इज गोइंग टू मेक डेल्टा जी नॉट मोर नेगेटिव, है ना. So that's why this type of reaction is going to be supported at higher temperature. Okay.
तीसरा जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन। ठीक उल्टा है जो हम लोगों ने अभी एलिमिनेशन में देखा ना, 2 सिग्मा ब्रेक किया, एक पाई बनाया, इसी का ठीक उल्टा कर लो तो वी आर कॉलिंग इट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है, एक पाई ब्रेक किया, देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ नहीं है, मैंने एक पाई ब्रेक कर दिया, यहाँ देखो एक एक्स्ट्रा एच और एच वाला बॉन्ड बन गया ना, एक्स्ट्रा 2 सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ठीक उल्टी कहानी हो गई। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे एक पाई ब्रेक किया, 2 सिग्मा बन गया, तो डेल्टा इज नॉट इज नेगेटिव। एंड दूसरी चीज, वी आर 2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करा के वी आर फॉर्मिंग 1 मॉलिक्यूल, है ना, वी आर सेइंग डेल्टा इज नॉट इज नेगेटिव। इज इट ओके? अगेन, अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो इट विल बी सपोर्टेड एट लो टेम्परेचर, दैट्स वन एक्सप्लेनेशन। दूसरी कहानी, डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन इज डेल्टा एच नॉट प्लस पी इंटू माइनस डेल्टा एच नॉट। अभी देखो डेल्टा एच नॉट निगेटिव है, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, है ना, तो हायर टेम्परेचर विल मेक इट मोर पॉजिटिव एंड दैट वी डोंट वांट फॉर स्पॉन्टेनिटी, है ना। स्पॉन्टेनिटी के लिए तो अपने को डेल्टा जी नॉट निगेटिव चाहिए, तो डेल्टा एच नॉट का निगेटिव होना इज मेकिंग माइनस डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई इट विल बी सपोर्टेड एट लोअर टेम्परेचर। एग्जैक्ट उल्टा कहानी है ना elimination का। So that's why in this case we are saying that thermodynamically this type of reactions are supported at low temperature. Any doubt up to this point? Like बहुत ही fundamental सा question दे रहा हूँ, you have to identify what kind of reactions these two are there. बताओ पहला स्टेप कौन सा रिएक्शन है out of substitution, elimination and addition? First reaction, okay. Okay, तो बेसिकली यहाँ देखो पाए जा रहा है, सिग्मा आ रहा है, तो दिस इज एडिशन, है ना, दिस इज एडिशन। एंड सेकेंड रिएक्शन में सिग्मा जा रहा है, पाई आ रहा है, और वो 2 बार आ रहा है, तो दैट इज एलिमिनेशन, है ना। समटाइम्स विल बी गेटिंग सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें तीनों इन्वॉल्व रहेंगे, विल शो विल कंसीडर दैट रिएक्शन इन फ्यूचर, तो ऐसा भी आने वाला। तो पहला जो है ऋषित, व्हाई यू आर थिंकिंग दैट सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बोला था, एक सिग्मा जाएगा तो उसकी जगह दूसरा सिग्मा आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 सिग्मा जा रहे हैं, इनफैक्ट 4 सिग्मा जा रहा है, यहाँ का एक एच भी जा रहा है, देखो, तो 4 सिग्मा जा रहे हैं और 2 पाई आ रहे हैं, तो इट इज लाइक 2 बार एलिमिनेशन हुआ है ना। एलिमिनेशन इज हैपनिंग 2 टाइम्स, इधर का बी आर इधर के एच के साथ और इधर का बी आर इधर के एच के साथ निकल के जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि 2 टाइम्स एलिमिनेशन इज हैपनिंग हियर। इज इट ओके? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो अब जाते हैं, एंटर करते हैं इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक एक करके सारा हैंडल करेंगे। तो माय सीक्वेंस, I first teach substitution, then I teach elimination, then I teach addition, ठीक है। तो substitution में भी again we'll be having 2 types of overall substitution reactions। एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक substitution, दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक substitution। न्यूक्लियोफिलिक substitution में we'll be having nucleophile as the attacking reagent। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना। तो यहाँ देखो Cn माइनस इज अटैकिंग, इट इज रिमूविंग Br माइनस, और यहाँ Cn अटैच हो गया, तो बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज, यहाँ पे देखो H2O जा रहा है और बाद में OH2 प्लस बन के उसमें से H प्लस निकल जाएगा ना, यहाँ से H प्लस निकल जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग OH, बट दिस इज द न्यूक्लियोफाइल वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। यस देखो ना, यहाँ पे Cn माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल विच इज गोइंग टू अटैक ओवर दिस वन, और ये चला जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, है ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी आई एक्सप्लेन दिस वन, मान लो ये Br है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
यहाँ पर एक्चुअल जो होगा वहां पर ये Br चला जाएगा, निकल जाएगा, बिकॉज ये वीक न्यूक्लियोफाइल है H2O। तो H2O का लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ओवर इट, ये इधर आएगा, एंड देन यू विल बी गेटिंग यहाँ OH2 प्लस आ गया, देन फाइनली H प्लस यहाँ से निकल जाता है, एंड देन वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। ओके, तो अगेन द अटैकिंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल है ना, H2O इज अ न्यूक्लियोफाइल, that's why we are calling it nucleophilic substitution. Okay, nucleophile is going to attack over net, या तो पॉजिटिव चार्ज रहे और डेल्टा प्लस कैरेक्टर रहे तो भी चलेगा। इफ आई एम हैविंग अ CBr बॉन्ड, this is more इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी लेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी हैविंग डेल्टा प्लस एंड दिस विल बी हैविंग डेल्टा माइनस, है ना। So delta plus over the carbon is the cause it is being attacked by the nucleophile. Is it okay? Ishan, clear na? Chalo, so this was nucleophilic substitution. There can be another type of substitution. दूसरे substitution को मैं अलग से जब aromatic compound वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी just I am giving you the example of electrophilic substitution. It is going to happen on aromatic compounds, and that's why it is also called electrophilic aromatic substitution. ठीक है, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर इट, और वो यहाँ से जैसे H को ले गया और E आ गया उसकी जगह, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो विल बी सेइंग दैट यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं? इट कैन बी Cl प्लस, इट कैन बी NO2 प्लस, इट कैन बी SO3H, SO3 प्लस, SO3 आ सकता है, विच कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइप के, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी Cl प्लस, this can be NO2 plus, this can be SO3 जो अटैच होके फिर SO3H बना लेता है फाइनली, है ना। So these are the electrophiles which are possible, which can be attacking over the aromatic ring, like benzene पे अटैक होगा, तो then it is called electrophilic aromatic substitution। इसकी डिटेलिंग मैं नॉर्मली इस चैप्टर में ना करके जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जाऊंगा ना, तो वहां पर मैं तुमको इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। But a basic point is, when nucleophile is attacking in a substitution reaction, it is nucleophilic substitution. When the electrophile is attacking in the substitution reaction, it is called electrophilic substitution. In this chapter, we are going to have detail of nucleophilic substitution. Electrophilic substitution मैं aromatic hydrocarbon के टाइम पे पढ़ा हूँ, ठीक है। लाइक मैंने बोला टाइप के अंदर टाइप के अंदर टाइप के अंदर टाइप होने वाला है, तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी कौन से टाइप्स हो सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो एक बेसिक जो आइडिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, विल बी हैव सबस्ट्रेट इन विच देयर विल बी सम लिविंग ग्रुप प्रेजेंट, एंड न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। यहाँ देखो जैसे Br वाज द लिविंग ग्रुप जो जा रहा है, Cn माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वहां उसकी जगह आ जा रहा है ना। तो एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, that is like this, I'll be having a living group, वो जाएगा मतलब ये इधर आएगा और ये निकल जाएगा, है ना। That's how we are going to have this form. Any doubt in this part? अब इसके भी ऐसे तो बहुत सारे टाइप आते हैं, बट बेसिक टाइप दो तरह के हो सकते हैं। That depends on the type of substrate as well as nucleophile. अब ये देखो पूरे प्रोसेस को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है। We have got RL का एक बॉन्ड है, and like I told you, nucleophile is going to attack over it, है ना। ये इस पे अटैक करने वाला है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है। केस वन इज, ये RL जो है ना, पहले ये R प्लस और L माइनस पहले से बना दे, and then nucleophile can attack over this to form RNU. Okay, this is one possibility. Another possibility is कि नहीं, ये दोनों काम एक साथ हो जाए, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने इमीडिएटली अटैक किया, एंड व्हाइल इट इज अटैकिंग ओवर द सबस्ट्रेट RL बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। तो यहाँ दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो एक स्टेप में हो जाए। यहाँ पर मैंने बोला ये ऐसा है, एंड देन ये पूरा काम एक साथ हो जाए, ये अटैक करे और ये लीव करे, एंड दैट्स हाउ वी कैन राइट हियर, ये एक ही बार में RNU प्लस L माइनस हो गया, जिसकी बात मैंने की थी कि एक ही स्टेप होता है, तो देन दैट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना।
तो case 1 is becoming a complex reaction in which we have got multiple steps. Case 2 is an elementary reaction, एक ही बार में सब कुछ हो गया. Is it okay? अब इसके फैक्टर्स धीरे धीरे देखेंगे. जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इट विल गिव टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना. एंड दैट्स व्हाई इट विल बी फॉलोइंग केस 1 वाला पाथ. लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग है देन इट विल नॉट गिव टाइम टू द सबस्ट्रेट so that it can form first the carbocation. Immediately nucleophile is going to attack, and in that process living group will be leaving the substrate, है ना. तो ये दोनों काम एक साथ हो रहा होगा. तो that is case 2. Is it okay? तो इसकी बेसिस पर we can have two types of nucleophilic substitution. पहले टाइप को बोलते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन और दूसरे टाइप को बोलेंगे SN2 रिएक्शन. ठीक है. तो SN1 रिएक्शन क्या है देख लो एक बार. When we are saying SN1 reaction, like I told you, पहले इसने कार्बोकेटायन बनाया है and then कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल is attacking to form this final product. Is it okay? Now if I ask you step 1 और 2 में क्या लग रहा है कौन सा स्लो स्टेप है? फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो है दिस इज स्लोअर स्टेप, दिस इज फास्टर स्टेप. एंड दैट्स व्हाई इफ आई हैव टू राइट द रेट एक्सप्रेशन ना, तो रेट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप विल बी गिविंग यू द रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसमें देखो सिर्फ आरएल इज इन्वॉल्व, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इवन इन्वॉल्व. एंड दैट्स व्हाई इफ आई हैव टू राइट द रेट ना, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट विल बी सम रेट कांस्टेंट इनटू ओनली सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन रेज टू 1, है ना. तो फिर इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज 1, है ना. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो SN1 में 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर, दैट मींस इसका ऑर्डर 1 है. इसके स्टेप्स 1 नहीं है, इसके स्टेप 2 है. ऑर्डर इज 1, दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इज इट ओके? So that's why I told you order of this reaction is equal to molecularity of the RDS, and RDS is this one. So this is going to be the RDS, and that is going to decide कि उसका order कितना है, and that is 1 only. Nucleophile is not involved in that step. Is it okay? और यहीं से जो मैंने एक बात बताई थी कि because in this case RDS is involving the formation of carbocation, so greater the stability of carbocation, more will be the reactivity of substrate, and greater will be the yield of product which is formed by that carbocation, है ना. Is it okay? Any doubt? So can you give another example of SN1 reaction? SN1 के अभी तो एग्जांपल, अभी तो मैंने फॉर्मेट दिया. एग्जांपल्स तो बहुत सारे करेंगे हम लोग. Okay, okay. We are going to do many examples of that. अभी right now I am giving you the formats only. Okay? चलो टाइप 2 में जाते हैं. बहुत लंबा डिस्कशन है ये, मतलब नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा जो होगा ना वो SN1 SN2 पे ही होगा. बेसिकली अभी मैं तुमको ये इंट्रोडक्टरी जैसा एक लेक्चर है, इसमें आई एम गिविंग यू ऑल द फॉर्मेट्स. फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे व्हाट आर द रिएक्शंस व्हिच विल बी कॉल्ड SN2, व्हाट आर द रिएक्शंस व्हिच विल बी कॉल्ड SN1. प्रैक्टिकली मतलब अपने सिलेबस में कौन कौन से रिएक्शंस आने वाले, विल बी कवरिंग ऑल दोस रिएक्शंस. ठीक है. बेसिक पॉइंट जो मैंने बताना चाहा यहाँ पे दैट वाज कि इसमें फर्स्ट वी आर गोइंग टू फॉर्म द कार्बोकेटायन एंड देन इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर द कार्बोकेटायन. ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी वाली जो बात है ना, क्या मैंने बोला, फर्स्ट स्टेप इज द स्लोअर स्टेप. ये बात समझ में आई क्या उदय? आर यू क्लियर अबाउट दैट? व्हाई फर्स्ट इज अ स्लोअर? बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना. आरएल बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन. सेकंड स्टेप में तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, R plus और X minus के बीच में RX bond is being formed. So bond breaking is slower than bond formation, and that's why first step is the slower step, है ना. Slower step में how many molecules are there on the reactant side? एक ही है ना, सिर्फ substrate है. And that's why we are saying कि first step की molecularity is 1, and that is going to be the order of reaction, क्योंकि वहाँ raised to 1 लिखना पड़ेगा. जितना इसके coefficient होता है उसी को raised to में लिखते हैं. We have got substrate only, and substrate का coefficient is 1, and that's why we are saying that कि RDS, that means slower step की molecularity is 1, so that's why order of reaction is also 1. Is it okay? Okay, sir. Understood. So then clear ना? Yes. यहीं पे if I talk about SN2 reaction, वहां क्या होगा? Like I told you, ये कहानी पूरी एक बार में हो जाएगी.
जैसे ये वाला केस है, चलो एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ SN1 का। अभी मैंने ऊपर इनफैक्ट दिया ही था, आ गया, दिस वाज द रिएक्शन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये देखो, दिस इज द रिएक्शन जिसकी बात मैं कर रहा था, दिस इज नथिंग बट SN1 ओनली। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको नीचे। मान लो अपने पास, इफ आई हैव गॉट Br एंड अटैकिंग रिएजेंट इज दिस टाइम, मान लो अपने पास H2O है। H2O इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीक वीक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस रहता तो स्ट्रॉन्ग हो जाता, वो इमीडिएटली रिएक्शन करना चाहता, तो H2O लिया। तो दिस विल गिव यू ना, पहले क्या होगा ना इस स्टेप में, पहले विल बी फॉर्मिंग दिस प्लस Br माइनस। अभी नाउ H2O इज गोइंग टू अटैक ओवर इट, तो देन विल से कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू फॉर्म OH2 प्लस बनता है, बाद में वो OH माइनस रह जाता है ना। तो देखो ये स्टेप 1 जो है, इसी को हम लोग RDS बोला है, बिकॉज इन दिस केस वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, है ना। इज इट ओके? दिस वाज द एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। SN2 की बात कर लेते हैं अभी। Like I told you, SN2 में everything will be happening in one step only. So if you see the SN2 reaction, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो और यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होने वाला था, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी हैपनिंग इन वन स्टेप। तो एक ट्रांजिशन स्टेप तो हमेशा ही बनता है ना, इवन इफ इन यू आर हैविंग अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ही आता है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ क्या हो रहा है ना, OH माइनस इज गोइंग टू अटैक ओवर दिस। ये देखो एक बार में इसने अटैक किया और ये गया और ये साथ में निकल आया, तो ये पूरी कहानी एक बार में प्रोडक्ट दे रहा है। ट्रांजिशन स्टेट जस्ट दिखाया है क्या हो रहा है ना, OH माइनस जैसे जैसे इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, साइमल्टेनियसली CBr बॉन्ड विल बी ब्रोकन, है ना। तो इन द ट्रांजिशन स्टेट यू हैव गॉट पार्शियल बॉन्ड्स फॉर्म, है ना। COH के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड है, CBr के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि पेंटावैलेंट हो चुका है कार्बन, इसमें से कोई भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं। इज इट ओके? तो पेंटा वैलेंसी नहीं आ रही है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड लिखने का मतलब है दीज टू आर पार्शियल बॉन्ड्स। ओके, पेंटा वैलेंट तो हो ही नहीं सकता कार्बन। एनी डाउट इन दिस पार्ट? अब if you see, if it is having just one step, so that step is going to give you the molecularity and the order of reaction. This is the only step, है ना? This is the only step. How many molecules are involved in that? How many molecules are involved? Two molecules है ना, एक तो सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल है ना। तो इसलिए हम लोगों ने बोला मॉलिक्युलरिटी ऑफ द ओनली स्टेप इज 2, एंड दैट्स व्हाई ऑर्डर विल बी आल्सो 2। मतलब यहाँ अगर मैं रेट लिखता हूँ ना, तो आई विल बी राइटिंग रेट विल बी सम रेट कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट जो दिख रहा है, तो आई विल राइट सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल है तो रेज टू 1, एंड इनटू दिस टाइम न्यूक्लियोफाइल जो है उसका भी एक मॉलिक्यूल है, वी आर राइटिंग रेज टू 1। तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया? तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज 1, ओवरऑल ऑर्डर विल बिकम 1 + 1, है ना। इसलिए इसको बोला है बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2, यहाँ पर SN2 में 2 जो है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ, नॉट द नंबर ऑफ स्टेप्स। देखो उल्टा हो रहा है, SN1 में 2 स्टेप है लेकिन ऑर्डर 1 है, तो उसको SN1 बोला है। SN2 में एक ही स्टेप है लेकिन ऑर्डर 2 है, तो वो 2 जो है ना, SN2 का 2 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट द नंबर ऑफ स्टेप्स। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? देयर इज अनदर काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन, थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसकी बात आगे हम लोग डिटेल में करेंगे ही। उसको भी SN2 ही बोलते हैं, बट उसमें थोड़ा डिटेल में बताते हैं। इट इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इतना बोलते हैं। वो कौन से रिएक्शंस है देखो, मान लो अपने पास सबस्ट्रेट जो है ना वो कार्बोनिल कंपाउंड जैसा हो गया, आर है, कोई अल्काइल ग्रुप है, CO जहां आर दिख रहा है वो अल्काइल ग्रुप है, और मान लो यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पर X लिखा हुआ है, तो दिस इज अ लिविंग ग्रुप, दिस इज अ लिविंग ग्रुप।
लेकिन यहाँ पर इफ यू इमेजिन ना कि मैंने न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा दिया, इस पे अटैक करवाया और ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये आसान नहीं है, क्योंकि इसके पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाती है, ये यहाँ से पाई भी तो ब्रेक कर सकता था ना, एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये डायरेक्ट नहीं होगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर द कार्बोनिल, nucleophile is going to attack over the carbonyl, and then first the pi will be broken because it is easier to break the pi bond, है ना, and that's why यहाँ पे पहले जो बनेगा ना, that will be like this, इसी को tetrahedral intermediate बोला है। In this case first the nucleophile is already attached to the substrate, बाद में फिर क्या होगा, यहाँ से O पे जो माइनस है ना, it will come back और फिर ये लीव करेगा। Then we have what, RCO nucleophile plus X minus, अल्टीमेटली हुआ यही है, X is being replaced by nucleophile, है ना, but the mechanism is different in this case. Is it okay? नहीं ईशान, अभी ध्यान से देखो, इफ आई हैव टू आस्क इट, जो बायमोलिकुलर वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, वो नंबर स्टेप पे नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अगर मैं पूछूं आरडीएस कौन सा है, पहला वाला है कि दूसरा वाला है, वैसे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे वापस से, बट यहीं पे चलो आगे है तो यहीं पे डिस्कस करते हैं। इफ आई आस्क यू फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर और सेकंड स्टेप, अच्छा किसी ने सेकंड बोला, किसी ने फर्स्ट बोला, नील टेल मी व्हाई सेकंड इज स्लोअर। नहीं देखो यहाँ क्या हुआ है ना, यहाँ ध्यान से देखो, पहले स्टेप में एक सिग्मा बना, एक पाई ब्रेक हुआ है, दूसरे स्टेप में वापस से पाई बना और एक सिग्मा ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो नाउ अगर एग्जैक्ट नेट देखने जाओगे ना, तो सिग्मा बना है, पाई ब्रेक हुआ है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, दूसरे वाले में पाई बना है और सिग्मा ब्रेक हुआ है, तो दैट इज मोर एनर्जी कंज्यूमिंग, है ना। इज इट ओके, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई नॉर्मली, तो पहले स्टेप में इफ यू सी, सिग्मा गया, सिग्मा बन रहा है, पाई ब्रेक हो रहा है, दूसरे स्टेप में पाई बन रहा है, सिग्मा ब्रेक हो रहा है, बट इफ यू सी दिस वन ना, इसका लॉजिक कहां से आता है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा पाई की कहानी तो ठीक है, बट यहाँ एंगल वॉच, आइडियली द एंगल वॉच 120 डिग्री जैसा थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ये डबल बॉन्ड में, बट वेरी क्लोज टू 120 बिकॉज इट इज sp2, है ना, दिस इज sp2 कार्बन, तो इसके अराउंड 120 डिग्री एंगल है। जैसे ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना ना, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तो वी आर गोइंग फ्रॉम sp2 to sp3, whenever I are going from sp2 to sp3 ना, बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग, तो एंगल स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग, है ना। तो यहाँ जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, वी से दैट when we are having the first step, in that angle strain is increasing because the bond angle is decreasing, in the second step angle strain is decreasing because the bond angle is again increasing। देखो यहाँ फिर से ये sp2 हो चुका है ना, this is again sp2, and that's why we are saying कि in this case step 1 is becoming the RDS। Is it okay? We are saying that step 1 is the RDS, and if step 1 is RDS, तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, step 1 में तो न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है, तो अगेन it is SN2 only, because I told you SN2 का मतलब नंबर ऑफ स्टेप से उसका कोई मतलब नहीं है। We see that कि how many molecules are involved in the RDS, RDS में 2 molecules involved है ना, and that's why it is also SN2 only, but this SN2 is occurring through the formation of a tetrahedral intermediate। वो जो टिपिकल SN2 मैंने ऊपर बताया था, इसमें कोई इंटरमीडिएट आ ही नहीं रहा था, it was having nucleophile and the substrate, and the nucleophile was attacking over the substrate to form directly the product। But in this case, if you see this one, यहाँ पे we are getting an intermediate, but still it is having molecularity of the RDS is 2. That's why order of the reaction is 2-1. Is it okay? Any doubt in this part? सर आप सिर्फ एक बार और बता सकते हैं, क्योंकि वो मतलब पहला स्टेप तो आरडीएस होगा। Okay, first step
सिग्मा पाई से देखोगे ना तो थोड़ा सा बहुत ही कॉम्पिटिटिव दिख रहा है, क्योंकि पहले वाले स्टेप में देखो सिग्मा बन रहा है, पाई ब्रेक हो रहा है, दूसरे वाले में पाई बन रहा है, सिग्मा ब्रेक हो रहा है ना, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक्सप्लेनेशन वहां से नहीं आता, एक्सप्लेनेशन कहां से आता है? एक्सप्लेनेशन इज कमिंग फ्रॉम द एंगल स्ट्रेन। व्हेन वी आर हैविंग द स्टेप 1, वहां पे कार्बन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर है ना, 120 जैसा कुछ रहेगा, वेरी क्लोज टू दैट। When we are having intermediate में देखो कार्बन, सेंट्रल कार्बन इज बिकमिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया ना, बॉन्ड एंगल कम होने से हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो when we are having first step, angle strain is increasing. When we are having second step, that carbon again is going from sp3 to sp2 है ना, and that's why we are saying कि वहां पर angle strain is decreasing, and that's why we are saying कि step 1 जहां पर angle strain बढ़ रहा है, that is the slower step है ना, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बढ़ाना है तो नहीं बढ़ाना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज स्लोअर स्टेप। इफ इट इज अ स्लोअर स्टेप देन दैट इज द आरडीएस, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इसी को आरडीएस बोला, तो इसी को Okay, हम लोगों ने बोला कि दिस इज, इट इज इन्वॉल्विंग टू मॉलिक्यूल्स, द सबस्ट्रेट एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2। So it is still SN2, but it is occurring through the formation of a tetrahedral intermediate, anionic intermediate, है ना। सी ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट नहीं था, दिस वाज ट्रांजिशन स्टेट, है ना, दिस वाज ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ तो इंटरमीडिएट बना ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे वी आर फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट, एंड फॉर एवरी स्टेप देयर विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट। जैसे इसका अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट लिखना चाहूँ ना, पहले वाले में तो आई विल से दैट कि आर सी एक्स ये सब तो है ही है, ओ, एंड यहाँ पे वन बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, एंड यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ऐसा कुछ रहेगा। इज इट ओके? सो इस तरह का बॉन्ड जब बन रहा है तो देन वी आर सेइंग कि इसके पास वी हैव गॉट दिस वन, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस जैसा आ रहा है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी कॉल्ड so even if you don't have intermediate, transition state will always be there. Is it okay? ईशान क्लियर ना? तो यहाँ जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन लिखा हुआ ना था ना, दैट वाज नॉट इंटरमीडिएट, दैट वाज ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ट्रांजिशन स्टेट में पेंटा कोऑर्डिनेटेड का मतलब पेंटा वैलेंट नहीं हो गया, 5 बॉन्ड नहीं हो गया, क्योंकि दीज आर 2 पार्शियल बॉन्ड्स, है ना। 3 फुल बॉन्ड है बट 2 पार्शियल बॉन्ड आ रहा है, जिसका नेट कंट्रीब्यूशन विल बी 1 ओनली। ओके, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और भी आएंगे बाद में, हम लोग देखेंगे SN1 डैश भी होता है, SN2 डैश भी होता है, SNI भी होता है, ये सब भी आएगा, धीरे धीरे हम लोग करेंगे उसको। बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टिपिकल SN1 एंड SN2 ना, जो ऊपर पढ़ा है, ये तीसरा वाला टाइप नहीं, जो पहला और दूसरा टाइप पढ़ा है ना, दिस फर्स्ट वन एंड दूसरा वाला, मतलब इसमें क्या बोला, पहले वाले में कार्बोकेटायन पहले बन गया, देन न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, दूसरे वाले में न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, एंड एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप इज लिविंग। अच्छा, एक तीसरा एक्सट्रीम भी हो सकता था ना, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैच हो जाए और फिर लिविंग ग्रुप लीव करे, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? मान लो मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैच कर दिया और फिर लिविंग ग्रुप को लीव करवाया, ऐसा कोई रिएक्शन क्यों नहीं बताया मैंने? न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट अटैच कर दूंगा तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना कार्बन के, बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए। ऑलरेडी इसके पास 4 बॉन्ड थे, इफ आई एम connecting one more bond then it will become pentavalent, है ना, that's why that is not allowed। इसलिए we have got SN1 जो टिपिकल था कि या तो लिविंग ग्रुप वाले लीव करके कार्बोकेटायन बना ले, ट्राइवेलेंट है, स्टेबल नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बट पेंटावेलेंटी तो वैलेंसी तो अलाउड ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल लॉजिकल पाथ्स। एक में पहले लिविंग ग्रुप हैज लेफ्ट इट एंड देन न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्मिंग द बॉन्ड, दूसरे में आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग एंड साइमल्टेनियसली द लिविंग ग्रुप इज लिविंग, तो अल्टीमेटली इट इज बिकमिंग टेट्रावेलेंट टू टेट्रावेलेंट ही रह जा रहा है ना। दीज आर द 2 लॉजिकल थिंग्स। इसी का एनर्जी प्रोफाइल अगर देखोगे ना, लाइक आई टोल्ड यू SN1 में वी हैव गॉट 2 स्टेप्स, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप आ रहा है, दूसरा स्टेप आ रहा है, और ये देखो हाइट अगेन, इफ यू सी पहले स्टेप के एक्टिवेशन एनर्जी ये गैप है,
एंड दूसरे की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पहला स्टेप जो था दैट वाज आरडीएस, है ना. If I call it EA1 and if I call it EA2, obviously EA1 is more than EA2, and that's why we are saying कि first step is the slower step, है ना. Is it okay? दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में तो एक ही स्टेप है, तो वी हैव व्हाट, यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है ना. इसको मैं बोल रहा हूँ TS1, इसको मैं बोल रहा हूँ TS2. दो ट्रांजिशन स्टेट है, एक इंटरमीडिएट है विच इज कार्बोकेटायन है ना. यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वी डोंट हैव एनी इंटरमीडिएट, वी हैव गॉट रिएक्टेंट सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, एंड देन फाइनली प्रोडक्ट्स बन जा रहे हैं. और यहाँ पर वी आर गेटिंग द ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज प्रेजेंट हियर. इज इट ओके? एनी डाउट? अब जरा डिटेल में जाते हैं, SN1 के डिटेल में जाएंगे, देन विल टॉक अबाउट SN2 के डिटेल में जाएंगे. ठीक है, तो एक एक करके इसके डिटेलिंग कर लेते हैं. सो SN1 के लिए आई विल बी गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो SN1 में देखो पहले क्या हो रहा है. SN1 में आई टोल्ड यू कि पहले लीविंग ग्रुप इज गोइंग टू लीव इट. जैसे ही लीव किया ना, यहाँ पर देखो दिस वाज sp3 था, अभी ये sp2 हो गया ना. इट हैज गॉट ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड. वैकेंट ऑर्बिटल को हम लोग स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं. इसका मतलब ये कैसा हो गया, इट इज लाइक इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट इट विद मोर विजुअलाइजेशन ना, तो आई हैव गॉट central carbon bonded with 3 groups. They can be hydrogen, they can be alkyl groups. So it's like कि मान लो यहाँ पे we have got एक alkyl group यहाँ है, दूसरा alkyl group यहाँ है, तीसरा alkyl group यहाँ है, and it has got a vacant orbital, है ना. This is a vacant orbital. अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है. न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम टॉप, इट कैन ऑल्सो अटैक फ्रॉम बॉटम ऑल्सो, है ना. एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन ना, अभी यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है. टॉप से अटैक किया तो एक प्रोडक्ट बन सकता है, बॉटम से अटैक किया तो दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बिकॉज फाइनली दिस इज गोइंग टू बी अ कायरल कार्बन. ये जो बीच वाला है ना, इफ इट हैज गॉट ऑल द ग्रुप्स डिफरेंट, देन इट विल बिकम कायरल कार्बन, है ना. तो देन वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विद टू डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री. दैट मींस जो हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करते थे या DL मिक्सचर की बात करते थे, वी कैन हैव D एज वेल एज L, है ना. तो दोनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं. दैट्स व्हाई SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री जब बोलते हैं ना, तो वी से दैट वी आर गोइंग टू गेट द पेयर ऑफ enantiomers here. इज इट ओके? इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर्स देन, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गेट द पेयर ऑफ enantiomers. इज इट ओके? तो इसी को दिखाने के लिए, जब इसको हम लोग फ्रंट साइड अटैक बोलते हैं ना, जिधर से ये जा रहा है उधर के लोब पे ही अटैक होना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन. वी कॉल इट रिटेंशन. और इधर से जा रहा है और पीछे से आके अटैक होना, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन. ओके, आई विल जस्ट रिप्रेजेंट इट. इट इज लाइक दिस. ये देखो जिधर से जा रहा है, अभी आया यहां से, ये बैक साइड से जिधर से जा रहा है उसके अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, तो देन वी आर कॉलिंग इट इन्वर्जन प्रोडक्ट, वो जो बना. लेकिन अगर जिधर से ये गया था, देखो इधर से गया था और इधर से ही न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है, देन वी आर कॉलिंग इट रिटेंशन. ठीक है, इफ यू सी, इफ दिस इज अ कायरल कार्बन ना, तो ये दोनों चीजें जो आ गई ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो आए ना, दीज आर पेयर ऑफ enantiomers. एक का आर आएगा तो दूसरे का एस आ जाएगा, एक का एस आएगा तो दूसरे का आर आ जाएगा. इज इट ओके? तो नाउ बिकॉज इट इज sp2 कार्बन, लाइक आई टोल्ड यू कि अटैक इधर से भी हो सकता है, अटैक इधर से भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ideally both the products should be formed in equal amount. But जब हम लोगों के पास ये लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है ना, तो इट इज पॉसिबल दैट कि इन्वर्जन पहले स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बैक साइड के अटैक का तो पॉसिबिलिटी तो वहां भी बना हुआ ही है ना. एंड दैट्स व्हाई इन मेनी रिएक्शन यू विल बी गेटिंग इन्वर्जन प्रोडक्ट
slightly more than the retention product. तो ideally speaking SN1 में we call it 100% रेसमाइजेशन. याद करो रेसमाइजेशन मैंने पढ़ाया था तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री के टाइम पे कि if you are getting रेसमिक मिक्सचर और उसमें दोनों बराबर बराबर अगर बन गए तो we call it 100% रेसमाइजेशन, है ना. बट अगर मान लो इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा हो गया रिटेंशन से, विच इज अ प्रैक्टिकल केस, क्योंकि इन्वर्जन के लिए बैक साइड अटैक करना पड़ता है. मान लो लिविंग ग्रुप ने अभी पूरा का पूरा लीव नहीं किया तो भी इन्वर्जन वाला अटैक तो अभी भी पॉसिबल है ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इसमें ideally we are going to get 100% resmization. Practically we'll be getting inversion product slightly more than the retention product. तो इसकी डिटेलिंग कैसे करते हैं हम लोग. we talk about कि ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है ना, इसके भी स्टेजेस है. ठीक है, इसके भी स्टेजेस है. वो कौन से स्टेजेस है, यहाँ देखो ये RX सबस्ट्रेट है. फाइनली वी आर गोइंग अप टू दिस वन, मतलब कार्बोकैटायन इज बीइंग फॉर्म. इसके बीच में वी आर गेटिंग टू इंटरमीडिएट स्टेज. मतलब पहले RX जो है ना उसको R+X- रखा है, बट स्टिल दे आर नॉट सेपरेटेड. देन वी आर कॉलिंग इट इंटीमेट आयन पेयर. फिर उसके बाद दीज टू आयंस आर सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर. मतलब इन दोनों आयंस को सेपरेट कर दिया बट दे आर नॉट सॉल्वेटेड सेपरेटली. ध्यान से देखो, दो वर्ड यूज किए हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार. देख लो ध्यान से, वर्ड्स क्या लिखा है, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर. मतलब these ions are separated not due to the presence of solvent in between them. बट इसके बाद जब पूरी तरह से अलग कर दिया ना, ये अलग और ये अलग, वी आर कॉलिंग इट सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन पेयर. मतलब अब R+ पूरी तरह से सॉल्वेट होके अलग हो चुका है, X- पूरी तरह से सेपरेट होके अलग हो चुका है. इज इट ओके नाउ these stages? Now what we are saying, the point is this attack leads to both inversion and retention of configuration in almost equal amount मैंने लिखा है. And that's why an ideal SN1 is going to lead to almost 100% resmization. But like I told you, in practice most SN1 reactions on chiral centers lead to inversion slightly more than retention, leading to partial resmization. 100% नहीं हो पाता है practically. और उसमें जो explanation है कि ये बीच के जो दो स्टेजेस है ना, उनकी लाइफ मैटर करेगी. तो SN1 में हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेसमाइजेशन का एक्सटेंट बढ़ेगा अगर ये बीच वाला है ना, ये जो इंटीमेट आयन पेयर है ना, इसकी लाइफ ज्यादा ना हो. मतलब यहाँ से डायरेक्टली ये बन जाए तो फिर रेसमाइजेशन बेटर होगा. अगर ये वाला इंटीमेट आयन पेयर की लाइफ अगर बढ़ रही है तो वी आर गिविंग मोर प्रोविजन फॉर द बैक साइड अटैक, है ना, इन्वर्जन वाले की. एंड दैट्स व्हाई इन्वर्जन इज बिकमिंग स्लाइटली मोर देन द रिटेंशन. एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस अगर तुमको रेसमाइजेशन बढ़ाना है, वी से दैट कि कार्बोकैटायन जो है ना वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना फास्टर बनेगा. और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल वीक है ना, तो फिर वो टाइम देगा कि ये फटाफट बन जाओ फिर अटैक होने वाला है. तो ये बीच वाला अटैक जो है ना उसकी पॉसिबिलिटी कम कर देगा. एंड दैट्स व्हाई SN1 इज ऑलवेज सपोर्टेड if carbocation formed is more stable and if nucleophile is weaker. न्यूक्लियोफाइल वीक रहेगा तो वो इंटीमेट आयन पेयर पे अटैक करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, वीकर है वो. तो फिर सीधा वो दैट कैन वेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन पेयर, है ना. But if nucleophile is strong, it will start attacking over the intimate ion pair itself. And वहां से तो inversion मिलने वाला है क्योंकि front side से तो X है, तो retention तो मिलेगा नहीं वहां से. And that's why in that case we are saying कि if nucleophile is strong और intimate ion pair की stability या उसका life span ज्यादा हो रहा है, तो फिर inversion will become more than the retention. है ना? Any doubt in this part? सर आप सिर्फ वो 4 स्टेजेस के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या क्या फिर से बोलो. सर. वो आपने वो 4 स्टेजेस बताए सर, उसके बाद का समझ में नहीं आया. मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो यहाँ RX था, I'll explain it again. ध्यान से देखो, दिस इज सबस्ट्रेट विच इज टोटली बॉन्डेड, है ना. यहां से क्या किया ना, अभी ये देखो किस स्टेज में जा रहा है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट SN1, तो ये क्या कर रहा है ना, पहले अभी यहाँ पर आयनाइजेशन होगा R+X-, बट स्टिल दे आर नॉट सेपरेटेड. ठीक है, इसको बोला वी आर कॉलिंग इट इंटीमेट आयन पेयर. मतलब चार्ज बन चुका है, R+X- बन चुका है, बट दे आर नॉट सेपरेटेड. फिर solvent molecules will be coming in between them. Then we are representing it like this one. So we are calling it solvent separated ion pair.
उसके बाद finally solvent is going to solvate both the ions separately, मतलब this will be solvated separately, X minus will be solvated separately, then we are calling it separately solvated ion pair. ये जो सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन पेयर बोला है ना मैंने, उसमें बिकॉज R प्लस जो बन रहा है ना वो वाला जो मैंने यहाँ दिखाया था, दिस वन, ये जो मैंने बताया था, जिसमें अटैक की पॉसिबिलिटी दोनों साइड से बराबर है ना, इज इट ओके? एंड दैट्स व्हाई इफ द अटैक इज हैपनिंग ओवर दिस सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 100% रेसमाइजेशन, इज इट ओके? इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक over this part gives 100% resmization. Is it okay? क्योंकि उसमें दोनों साइड से अटैक की पॉसिबिलिटी बराबर है। लेकिन अगर मान लो इंटीमेट आयन पेयर पे अटैक होने लगे, इट इज लाइक जैसे हम लोगों ने बात किया था अभी, मान लो यहाँ पे ऊपर जो एग्जांपल दिया था वही लेते हैं। मान लो ये वाला जो लिया था, एक्स रखा है R1 R2 R3, चलो ठीक है। तो दिस इज लाइक R1 R2 R3, और यहाँ पर जो भी लिविंग ग्रुप था दैट वाज देयर। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मान लो इवन इफ इंटीमेट आयन पेयर इज देयर, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ एक्स माइनस ऐसा है, न्यूक्लियोफाइल के पास देखो नेगेटिव चार्ज है और या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो देखो इधर से अटैक करेगा ना, तो दिस इज गोइंग टू रिपेल इट, है ना। एंड दैट्स व्हाई ये फ्रंट साइड से तब तक अटैक नहीं कर पाएगा जब तक कि एक्स माइनस पूरा का पूरा हट नहीं जाता है ना। So that's why retention will be avoided due to the presence of X minus. बट इन्वर्जन तो अभी भी हो सकता है ना, पीछे से तो अभी भी अटैक कर सकता है, इधर से तो उसको रिपल्सन नहीं मिल रहा है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि न्यूक्लियोफाइल का इधर से अटैक इज स्टिल पॉसिबल। तो इफ न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ओवर दिस थिंग ना, देन दैट लीड्स टू इन्वर्जन ओनली। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? नाउ द पॉइंट वाज कि अगर मुझे 100% रेसमाइजेशन चाहिए तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज है 100% रेसमाइजेशन चाहिए तो फाइनली जो सॉल्वेटेड सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन पेयर है उसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है दैट शुड बी हाईली स्टेबल, तभी तो फटाक से बन के और फिर टोटली सॉल्वेटेड हो जाएगा, सो दैट वी कैन गेट द 100% रेसमाइजेशन। इसलिए इफ यू वांट 100% रेसमाइजेशन और इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन, I need to have more stability of the carbocation form. Is it okay? Second thing is nucleophile should be weaker. Nucleophile weak होने से क्या होगा ना, वो intimate ion pair पे अटैक नहीं करेगा, because it is weak, तो it will wait for some time. इसकी reactivity इतनी कम है कि it can wait for the formation of that separately solvated ion pair. Is it okay? तीसरी बात जो मैंने बोला, इसी में छुपी हुई बात ये है कि इंटीमेट आयन पेयर का जो लाइफ है ना दैट शुड बी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब वो तुरंत ही वो सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन पेयर पे चला जाए, देन वी आर गोइंग टू गेट 100% रेसमाइजेशन। ये बीच वाला जो इंटीमेट आयन पेयर है इसके प्रेजेंस के कारण क्या होगा ना, देयर विल बी स्लाइटली मोर इन्वर्जन देन द रिटेंशन, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इन्वर्जन बन रहा था। तो इसकी लाइफ अगर जीरो हो गई तो सिर्फ इन्वर्जन बनने वाला फेज ही खत्म हो गया है ना। इज इट ओके? क्लियर ना एवरीवन? So that's why I told you, if you want to increase the extent of resmization, there are two conditions. पहली बात, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बने उतना अच्छा है, क्योंकि तब वो जाके डायरेक्टली वहां तक जा पाएगा फास्टर। एंड दूसरा, न्यूक्लियोफाइल वीक है तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू अटैक ओवर द इंटीमेट आयन पेयर। और तीसरा बात जो छुपा हुआ था कि इंटीमेट आयन पेयर का लाइफ जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट जीरो जैसा होना चाहिए, है ना, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू 100% रेसमाइजेशन। So the points are, first point is in SN1 reaction, if carbonium ion or carbocation is highly stable, then we are saying अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया ना तो फिर इसकी लाइफ जीरो हो जाएगी, है ना, इंटीमेट आयन पेयर की लाइफ जीरो हो जाएगी। And that's why we are saying if carbonium ion is highly stable, then intimate ion pair has almost zero life, और अगर उसकी लाइफ जीरो हो गई तो फिर सीधा 100% रेसमाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो अटैक इज ओनली ऑन सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर और सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन पेयर, इन दोनों पे अटैक होने वाला है, और इन दोनों पे अटैक तो दोनों साइड से बराबर होता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इसमें यू आर गोइंग टू गेट 100% रेसमाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज लीडिंग टू 100% रेसमाइजेशन।
बट इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बोला OH माइनस जैसा कुछ आ जाए, then it is a strong nucleophile, then the attack will begin on the intimate ion pair itself, and that's why it is going to lead to inversion being more than retention, and that's why you'll not get 100% respiration. The percentage respiration will be less than 100. है ना? Is it okay? हाँ जी, यस, पूरी कहानी जब मैं बता दूंगा ना, तो आई विल बी गिविंग यू कंप्लीट चार्ट कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं और कौन से केस में किस तरह का रिएक्शन होगा, ये पूरी कहानी मैं बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वेट फॉर दैट, ओके? चलो, एक स्पेशल केस जो हम लोग को क्या होता है ना, मैं रिजल्ट्स बता देता हूँ, तुम रट्टा मार लेते हो और फिर वही बार बार बोलते हो। जैसे मैं इन जनरल जब पूछूं ना SN1 से क्या होता है, तो तुम बोलोगे रेस्माइजेशन होगा, मतलब यू विल बी गेटिंग पेयर ऑफ एनहांसियमर्स। मैं पूछूंगा SN2 में क्या होगा, तो यू विल बी सेइंग कि इन्वर्जन ओनली विल बी फॉर्म, क्योंकि एक ही बार में प्रोडक्ट बनना है तो बैक साइड अटैक से ही बनेगा, ठीक है? तो वहां पर तुम बोलोगे इन्वर्जन होगा। बट यहाँ पर हम लोग भूल जाते हैं कि मैंने यहाँ पर ये बताया था कि अगर एक ही कायरल कार्बन है जिसपे अटैक होने वाला है, तो वी आर गोइंग टू गेट द रेस्माइजेशन, दैट मींस पेयर ऑफ एनहांसियमर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म। बट स्पेशल केस क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू कॉल इट स्पेशल केस। जैसे ये वाला केस देखो, यहाँ पर दिस इज ऑलरेडी अ कायरल कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन, दो है ना, इधर तो अटैक ही नहीं हो रहा है, इट विल रिटेन। अगर ये मान लो आर आर, एक बार जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ दिस इज आर एंड दिस इज आर, ये तो आर का आर ही रह जाएगा। यहाँ पे वी कैन हैव बोथ द पॉसिबिलिटी, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। तो अभी देखो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल देखो कैसा हो गया, आर आर और आर एस का कॉम्बिनेशन ना। तो फिर अगर ये नहीं होता कायरल कार्बन, इफ दिस कायरल कार्बन वाज नॉट देयर, तो हम लोग बोलते एक आर बना एक एस बना, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट पेयर ऑफ एनहांसियमर। लेकिन जब द मोमेंट आई हैव गॉट दिस वन आल्सो इन्वॉल्वड, देन यहां तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो एक जगह चेंज हो रहा है, एक जगह चेंज नहीं हो रहा है, तो दीज टू आर नॉट पेयर ऑफ एनहांसियमर, दे आर एक्चुअली डायस्टेरियोमर्स। इज इट ओके? सो दिस इज स्पेशल केस, इसको ध्यान में रखोगे। एंड दीज आर द थिंग्स जेईई एडवांस देखता है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि पूरा रट्टा मार लिया है। स्पेशल केस वन, देयर इज जस्ट वन केस जहां पर यह ध्यान में रखना है कि इफ देयर वाज ऑलरेडी अ कायरल कार्बन जिसपे कोई अटैक ही नहीं हो रहा है, तो वहां का कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिटेन्ड, है ना। और दूसरे पर जहां अटैक हो रहा है, वहां अगर SN1 हो रहा है, तो वहां पर एक R का R रह जाएगा, R का S भी हो जाएगा। तो जहां R का R रह गया, वहां पर वी हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ RR, एंड दूसरी जगह जहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, नाउ वी हैव गॉट RS, एंड दैट्स व्हाई इट इज neither different nor same exactly, है ना। दैट्स व्हाई दे आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। इज इट ओके? एनी डाउट? अब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर जानना है कि SN1 के लिए क्या होगा, तो वी हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और जो मैंने पहले ही तुमको बताया हुआ है ना, हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया था कि कार्बोकैटायन जो बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, है ना। तो जहां पे रिएक्टिविटी पूछेंगे तो विल सी कि कौन सा कार्बोकैटायन कौन से केस में बन रहा है, और उसके हिसाब से विल बी टॉकिंग अबाउट द ये पहला कायरल कार्बन है ना, देखो ना, ये इथाइल है, this is ethyl, this is methyl, this whole thing is one group which is different from all these three, and चौथा is H, है ना, and that's why this is chiral carbon. Is it okay? Ishan, clear ना? See, one is methyl, this is methyl, है ना, this is ethyl, another is this whole group which is neither methyl nor ethyl, and चौथा एक hydrogen है, तो we have got 4 different groups over this carbon, है ना. So like I told you, if they are asking you order of reactivity of the substrate, we have to see the stability of carbocation. तो यहाँ पे अगर किसी ने 3 डिग्री वाला कोई एक रख दिया और 2 डिग्री और 1 डिग्री रख दिया और पूछा कि इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 बताओ, तो विल बी सेइंग जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, है ना. इज इट ओके? जैसे एक एग्जांपल जस्ट मैं बता देता हूँ. मान लो अगर उन्होंने पूछ दिया रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ
reactivity towards SN1. With H2O as nucleophile. Then मान लो अपने पास CH3 X यहाँ कोई भी हेलोजन ग्रुप है. Then we have got CH3 and X, and then we have got CH3 CH2X, and then we have got CH3X. तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? देखो पहले वाले में टर्शियरी कार्बोकेटायन बनने वाला है जो ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरे में सेकेंडरी बनेगा, तीसरे में प्राइमरी और चौथे में मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा. तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर, है ना? इज इट ओके? एनी डाउट? Any doubt up to this point? SN1 clear ना? Practice करेंगे. Next day I'll be giving you many points related to SN1 and SN2, and we'll be talking about many reactions which are going to follow these paths. Okay? But any point which is not clear to you, just ask me, because this is the most conceptual chapter of organic chemistry. यहीं से सारा concept building होने वाला है. इसके बाद जाओगे तो हर बार इसी का application we are going to use. चलो SN2 पे आ जाते हैं. SN2 के बारे में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, एक ही बार में होने वाला है. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट इज गोइंग टू लीड टू SN2, क्योंकि वो वेट नहीं करेगा, वो तुरंत अटैक करेगा. और वो जब अटैक करेगा तो अगर लीविंग ग्रुप ऑलरेडी लेफ्ट आउट नहीं है, जो कि SN2 का केस है, तो इन्वर्जन इज गोइंग टू बी द इन्वर्जन इज गोइंग टू हैपन, है ना? सो दैट्स व्हाई इट सेज in SN2 reaction on sp3 carbon, nucleophile attacks from back side of the living group. क्योंकि लिविंग ग्रुप जिस साइड है उधर उस पे भी डेल्टा माइनस है, तो दैट विल रिपेल द न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो फ्रंट साइड का अटैक नहीं होगा, तो बैक साइड का अटैक होने वाला है. एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इफ इट मैटर्स, है ना? मान लो कायरलिटी है ही नहीं तो फिर तो वो पॉइंट ही नहीं बना. लेकिन इफ कायरलिटी इज देयर, देन विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आर कॉन्फिगरेशन था तो एस हो जाएगा, एस कॉन्फिगरेशन था तो आर हो जाएगा ना. इज इट ओके? सो वी आर सेइंग कि अगर फ्रंट साइड से अटैक की पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश भी करेंगे तो इट विल नॉट हैपन, बिकॉज वहां लिविंग ग्रुप का जो लोन पेयर है या डेल्टा माइनस जो है ना, दैट इज गोइंग टू रिपेल इट, है ना? तो अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड सफर्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. जैसे मैंने बताया कि इफ आई एम हैविंग, मान लो सी पे एक एक्स है और कुछ 3 ग्रुप्स है, अगर न्यूक्लियोफाइल को इधर से लेके जाना चाहूंगा ना, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है. इफ इट वांट्स टू अटैक ओवर दिस ना, फ्रंट साइड जाएगा तो दिस इज गोइंग टू रिपेल इट, है ना? एंड दैट्स व्हाई फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ SN2. इट विल ऑलवेज बी हैविंग बैक साइड अटैक, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इफ कायरलिटी इज देयर, है ना? सो दैट्स व्हाई वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इन्वर्जन हो रहा है तो दिस यू विल बी हैविंग बैक साइड अटैक. अगर chiral carbon है, if SN2 is going to happen on chiral carbon, inversion of configuration will occur because backside attack is going to happen, है ना? इसी को एक नाम दे दिया गया वाल्डन और अम्ब्रेला इन्वर्जन. इसमें क्या हो रहा है ना, जो ये वाली चीज है ना, मान लो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप है. देखो ये एक तरफ से ये आ रहा है और दूसरी तरफ से ये निकल के जा रहा है ना. यहाँ पे इफ दे आर आस्किंग यू इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ध्यान से देखो. जब हम लोग SN1 भी कर रहे थे ना, इफ आई एम हैविंग द कार्बोकेटायन और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे, विल से दिस इज sp2, है ना? Even in the transition state of SN2, if they are asking you hybridization, partial bonds will not be included in the hybridization. So we'll say still it is having 3 sigma bond only. We'll still call transition state in this one will be called, this carbon will be called sp2 hybridized. Is it okay? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं. मतलब इट विल बी वन ऑफ द ऑप्शन इन
which of the following are correct or incorrect, वैसा वाला है ना. Again, I am just giving you a chart. देखो जरा SN2 में क्या मैटर करता है, SN1 में क्या मैटर करता है. लाइक SN1 में मैंने क्या बोला, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है ना. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा SN1 का रेट होगा. SN2 में कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा है. तो देन वी हैव गॉट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओवर द कार्बन एंड दैट विल सी कि सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग कहां पे है, वहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा SN2. तो लीस्ट स्टेरिक क्राउडिंग विल रिजल्ट इन maximum rate of SN2 reaction है ना. And that's why if you see just मैंने it is from internet only, numbers are not important, just to give you the idea कि देखो किस रेंज में चला जाता है. मिथाइल के पास सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग है, सारे के सारे H हैं इसमें है ना. इसके लिए रिएक्टिविटी जो है ना वो ये देखो 20 लाख जैसा है, 2 मिलियन लिखा हुआ है उसके रेंज में. उसी के सामने जस्ट एक मिथाइल आ जाने से इट हैज कम फ्रॉम 20 लाख टू 40,000. 2 मिथाइल आ जाने से नाउ रिएक्टिविटी का रेंज इज कमिंग फ्रॉम 40,000 टू 500 आ गया. और यहां पर देखो एक नियो पेंटाइल ले लिया ना, मतलब बाजू में तो 2 ही हाइड्रोजन है, बट यहां पर दिस बिगर ग्रुप इज प्रेजेंट ना. नाउ दैट इज कमिंग एट लेवल ऑफ 1. मतलब इसको अगर रेफरेंस लिया है ना तो सेकेंडरी इज हैविंग रिएक्टिविटी ऑफ 500, प्राइमरी इज हैविंग रिएक्टिविटी ऑफ 40,000. मिथाइल का तो बहुत ज्यादा है, 20 लाख जैसा है. इज इट ओके? So that's why if they are asking you ना rate of reaction अगर यहाँ पूछ दिया जाए and if they are asking you तो will be saying 3 डिग्री Rx जो होगा ना, X is the leaving group, उससे ज्यादा होगा 2 डिग्री Rx का रेट, उससे ज्यादा होगा 1 डिग्री Rx का रेट, और उससे भी ज्यादा CH3X का हो जाएगा. Is it okay? What we are going to see here is the steric factor. Any doubt? अब जैसा मैंने स्पेशल केस बताया था SN1 वाले में, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जहां पर कायरल कार्बन पे अगर अटैक हो रहा है तो वहां कॉन्फ़िगरेशन का रेसमाइजेशन होने वाला है. R का R भी रह जाएगा एक बार, R का S भी हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी सिंपली से दैट कि रेसमाइजेशन हुआ है तो वहां पर तो रेसमाइजेशन होगा, बट अलग से अगर एक कायरल कार्बन अलग से आ जा रहा था, इन दैट केस लाइक दिस स्पेशल केस, देखो यहाँ पे तो रेसमाइजेशन हुआ है, R का R भी रह गया, R का S भी हो गया है. बट ओवरऑल इफ दे आर आस्किंग यू जो दो प्रोडक्ट बने उनका रिलेशन क्या है, तो दे आर नॉट नाउ पेयर ऑफ एनेंटियोमर, दे आर बिकमिंग डायस्टेरियोमर. SN2 में भी एक ऐसा स्पेशल केस बनता है. वो कौन सा केस है देखो जरा. यहाँ मैंने क्या बोला, इन्वर्जन होने वाला. इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, R का S हो जाता है ना. नॉर्मली वी आर सेइंग दैट कि इन्वर्जन में R का S हो जाएगा. इन्वर्जन का मतलब है अटैक फ्रॉम द बैक साइड. ठीक है, बैक साइड होने से नॉर्मली जनरली ऐसा होता है कि अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा. Again, I am talking about one special case. ध्यान से देखो जरा ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं. बैक साइड अटैक का मतलब है वहां पे पोजीशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, है ना. जैसे इफ यू सी दीज एग्जांपल्स, देखो यहाँ Cl जो है ना दैट इज द लिविंग ग्रुप. तो Cl गया बिकॉज मैं बैक साइड अटैक करने वाला हूँ. यहाँ SN2 की बात होने वाली है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, तो SN2 की बात करने वाला हूं. तो ये देखो यहाँ OH को मैं नीचे लेकर आया हूं ना. वी आर सेइंग दैट कि इट इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम दिस साइड और ये फिर लीव करेगा. एंड दैट्स व्हाई देखो डायरेक्शन चेंज कर दिया. C2H5 को OH, C2H5 को ऊपर कर दिया, OH को नीचे कर दिया. नाउ इफ आई आस्क यू ना, यहाँ पे RS बताओ क्या है, R है कि S है, और यहाँ पे बताओ क्या है. टेल मी. दिस इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, then 2, then 3. We are going from 1 to 2 to 3. अगर मैं जा रहा हूं तो I am going anti clockwise. तो this is R because H is on the horizontal line. H is on the horizontal line. This is having priority number 1, 2, 3. 1 to 2 to 3 I am going clockwise. So this is actually S. तो देखो R का S हो गया ना. This is general case. ये general है. यही लगभग हर केस में ऐसा ही होगा. Special is the second example. Okay? This is special. मैंने वही काम किया. देखो यहाँ पर Cl था, Cl को हटा के यहाँ OH ले आया और C2H5 को ऊपर कर दिया. बट नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू गेट RS कॉन्फ़िगरेशन ना, देखो यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज CH3 व्हिच इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन.
then priority wise this is 1, this is 2, this is 3. So now if you see we are going clockwise 1 to 2 to 3 कर रहे हैं clockwise, that means यहाँ पे S है. अब जरा यहाँ देखो, this is 1, this is 2, and if you see this is 3, है ना, this is least priority. अभी मैं 1 to 2 to 3 जा रहा हूँ, again I am going anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? 1 मिनट रुक जाओ. यहाँ पे 1, 2 and 3 this was clockwise and then अगर वर्क किया CH3 CH2. हाँ, इस केस में सॉरी this is 1 है ना, ये गड़बड़ है ना. This is 1, this is 2, this is 3. Again if you see 1, 2, 3 we are going clockwise, so this is S again. Why this has happened? Anyone? जरा ध्यान से देखो. Why it has happened? काम तो वैसा ही किया ना, पहले वाला केस जैसा ही किया. OH को पीछे से लगाया, C2H5 को ऊपर कर दिया. I have done the same thing. Why it is changing? In principle we have done the right thing. ये भी SN2 ही है. बट यहां पर वी आर सेइंग कि इन्वर्जन हो गया था, R का S हो गया था. हाँ, बिकॉज आने वाला जो ग्रुप है ना OH है. इफ आई से प्रायोरिटी वाइज ना, प्रायोरिटी वाइज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन ना, प्रायोरिटी ऑर्डर जो था ना, दैट वाज हैविंग Cl की प्रायोरिटी वाज मोर देन C2H5, देन CH3, एंड जब OH आया था तो भी OH was coming in the place of this one. Still we have got the same priority order, है ना. But special case में जब हम लोग जा रहे हैं, इसमें देखो in the reactant और in the substrate priority order देखोगे तो we have got Cl more than F more than C2H5. But जब OH आया ना, जो कि Cl की जगह आया, then F is becoming more prior than OH. Then we have got C2H5. So what is happening ना, यहाँ पे जो जाने वाला है और जो आने वाला है वो दोनों सेम प्रायोरिटी प्लेस पे है ना. इट इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन बोथ द केसेस. बट यहाँ पे जो जाने वाला है दैट वाज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो आया है दैट इज हैविंग द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी. एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी कि R का S ही होगा या S का R ही होगा. इट मे बी पॉसिबल इन सच केसेस if the leaving group and the incoming group, that means the nucleophile, is having different order of priority, then you may have S का S also or R का R also. Is it okay? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे. क्यों रिलेवेंट लग रहा है ऐसा आर्यन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों आ रहा है यहाँ पे, कैसे कुछ है क्या? नहीं, वो टेट्राहेड्रल पोजीशन में है. दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, है ना. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना. अभी देखने से क्लोज दिख रहा है बट मिडिल कार्बन पे दे आर एट 109 डिग्री 28 मिनट जैसा एंगल रहेगा ना. sp3 है. सो द पॉइंट, द मैसेज फ्रॉम दिस एग्जांपल इज, ये जो मैंने स्पेशल एग्जांपल कहा है उसका मैसेज क्या है, दैट इन्वर्जन इज हैपनिंग. इन दिस केस आल्सो इन्वर्जन इज हैपनिंग. सो वी आर सेइंग इन्वर्जन इन SN2 इज इन्वर्जन in configuration and not necessarily inversion in optical rotation. मतलब हो सकता है R का R ही रह जाए, S का S ही रह जाए, या R का S या S का R भी हो सकता है. बट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बैक साइड अटैक होने से पोजीशंस आर बिकमिंग डिफरेंट, है ना. इज इट ओके? Any doubt up to this point? Any doubt? नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू कंपेयर SN1 SN2 का कंपैरिजन भी करेंगे. फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि SN1 को सपोर्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं, SN2 को सपोर्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं. ये सारी चीजें करने के बाद
एंड अगेन सारा कुछ कवर करने वाले हैं, वट एवर फैक्टर्स कैन बी देयर ना, सबस्ट्रेट क्या हो जाए तो कौन सा रिएक्शन फेवर्ड होगा, न्यूक्लियोफाइलिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यश ने आई थिंक पूछा था, तो न्यूक्लियोफाइल में कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है, प्रैक्टिकली विल बी डिवाइडिंग द न्यूक्लियोफाइल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, वीक किसको लेते हैं, स्ट्रॉन्ग किसको लेते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लिविंग ग्रुप की बात करेंगे, लिविंग ग्रुप में वी कैन कन्वर्ट बैड लिविंग ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप, उसकी बात करेंगे, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गुड लिविंग ग्रुप्स की बात करेंगे व्हिच आर गोइंग टू सपोर्ट SN1 as well as SN2। reagents में sometimes we can have additionally present compound which can be good Lewis acid, उसकी बात करेंगे। सॉल्वेंट की बात करेंगे कि कौन से सॉल्वेंट में किस तरह के रिएक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक आध न्यूमेरिकल पॉइंट भी बनते हैं, जैसे आई गिव यू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां पे SN1 SN2 दोनों अगर हो रहा हो तो SN1 के तरफ what part of reaction will be going towards SN1 and what part will be going towards SN2, ऐसा भी एक डिस्कशन करेंगे। and then a very important part is if I am getting carbocation formed, particularly SN1 में जैसे carbocation बन रहा है ना, we will be talking about something very important concept which is called rearrangement of carbocation। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का मेन अपना टॉपिक यही रहेगा। we'll be talking about what are the factors which are going to support SN1, what are the factors which are going to support SN2. There are some compounds which are not going to undergo any of these reactions, SN2 or SN1, then we'll be talking about that। and जो मैंने मेन पार्ट बोला कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि whenever we have got carbocation formed in a reaction ना, we'll always talk about the possibility of rearrangement of the carbocation। Sometimes it can lead to ring expansion and ring contraction also, ठीक है, तो that will be the topic of discussion of Saturday's lecture। चलो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट एंड देन विल बी गोइंग इनटू एलिमिनेशन एंड एडिशन वाला रिएक्शंस, है ना। ओके, चलो जी, बाय एवरीवन।